Okay, so we are starting with the program. A very good morning to all the participants who have joined today's program. On behalf of Deccan Education Society's Kirti M. Dungosi College, I, Meenal Mapuskar, welcome you all for today's guest lecture titled The Tribal Movement in Maharashtra Issues and Challenges. May I now request Medha Dhapre Madam, the head of the Department of Political Science of Kirti College, for the welcome address. Medha Madam, over to you. Uh, Thank you, Meenal. I take this opportunity to welcome all the members who have joined on this pleasant morning. Suprabhat and namaskar to all of you. Now, this pandemic has taught us back to our traditions of putting hands together instead of shaking hands. So, with this warm, with this, I would like to welcome our guest speaker of today, Mr. Milind Thatte. Shri Milind Thatte, a very energetic, passionate about the tribal cause, the guest speaker, and I think he will, when he his talk will take you to the world of the tribals. Dr. D.V. Pawar, the principal, Kirti College. Dr. Meenal Mapuskar, life member, vice principal, and my fellow department colleague. The friends, my fraternity friends who have joined from various parts of Maharashtra. My fraternity friend here, I mean that my all the teachers who are teaching politics in different colleges in Maharashtra have joined in large number. So I really am thankful to all of them who have joined along with their students for this interesting talk on the tribal issues. I, I welcome all the teachers of Kirti College and also the undergraduate, postgraduate students of Kirti College. Now, this is the opportunity which I'm taking under the auspicious of Srujan Academic Festival, annual academic festival. We are organizing this talk, this guest presentation. Srujan the is a is an academic festival which is carried out every year in Kirti College. It is organized every year. Here, various departments from arts, science, commerce, and self-financing, they are organizing various activities, particularly academic in nature. So this is a platform wherein the departments are taking up the under one heading, and that is the Srujan. Srujan is creativity. So to help the creativity among the students, also we are organizing various competitions and programs under the Srujan. So this is the fourth year in which we are carrying out the program Srujan. This year, the department has organized the PPT making and presentation competitions. Due to pandemic, you all are aware that we are meeting online, and that is the reason why we had organized this competition of PPT making and presentation. The students have done really well. With these few words, let me तो काफी सारी समस्याएं हो तो मुंबई को अपना पानी क्या ठीक से मिल पाएगा? उसी तरह से अलग अलग मिनरल्स है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट फूड है, फॉरेस्ट मेडिसिन है, ये सारी चीजें और ट्राइबल प्रॉस्पेरिटी आर इंटरलिंक्ड, दे आर सिनोनिमस, एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है कि आप एक का नुकसान करो तो दूसरे का नुकसान होता है। और इसकी शुरुआत 1864 में हुई। फॉरेस्ट एक्ट was formed in 1864. Forest Department was founded in 1865. And since then, the colonial government declared that all forest belongs to government. And whoever lives in forest, whoever does anything for survival in forest is a criminal. In 1871, there was a Criminal Tribes Act passed.
Entire tribes were declared criminal. हम सब समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपराधी हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी जाति जनजाति अपराधी कैसे हो सकती? फिर भी अंग्रेजों के जमाने में इस ढंग के कानून बनाए गए जिनमें जंगल में रहने वाले सभी लोगों को अतिक्रांता या एनक्रोचर कहा गया। अभी मुंबई सिटी में या बड़े शहरों में जब एनक्रोचमेंट होता है तो दैट इज फॉर बिल्डिंग हाउसेस ऑन अ न्यू लैंड और ऑन अ पब्लिक लैंड। लेकिन ये इस ढंग का अतिक्रमण नहीं था। लोग पहले से जंगलों में रहते थे, पहले से पहाड़ों में रहते थे, वहां पर जो भी प्राकृतिक संपदा है उस पर अपना पेट पालते थे। लेकिन 1864 में फॉरेस्ट एक्ट बना and suddenly all these people living in forest who are now called Adivasi or Vanvasi or Vanya Jati, our constitution calls them scheduled tribes. अनुसूचित जमाती असं मराठीत म्हणतात, अनुसूचित जनजाति ऐसा हिंदी में कहते हैं। तो ये सभी पहले से जंगल में थे, but the colonial government never considered their rights to livelihood, rights to life. For example, the people living in forests used to take firewood from the forest. Firewood क्यों लेते हैं? खाना बनाने के लिए। मतलब आपको अगर कोई कहेगा कि एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा? So telling a tribal that you cannot take firewood from forest is like cutting off his right to food. जंगल से अलग अलग तरह का अन्न मिलता है। अभी कुछ फल फूल कंदमूल इनके बारे में तो हमने सुना हुआ रहता है, but we know for sure, as my organization as well as many other organizations who celebrate forest food festival or Ran Bhaji Mahotsav, these Ran Bhaji or forest food wild edibles are available in huge numbers in huge variety. हमारे ही गांव में 76 तरह की सब्जियां केवल श्रावण भाद्रपद इन 2 महीनों में मिलती है जंगल में। अब जंगल में से ये सारी चीजें लेना ये भी एनक्रोचमेंट माना जाता था। जंगल से जैसे फायरवुड लेना है वैसे ही अपने जो पालतू जानवर है, कैटल इंक्लूडिंग गोट, cows, bullocks, all the grazing of these animals was also prohibited by British laws. There is a Cattle Trespass Act of 1871 which is still applicable today. Cattle Trespass Act मतलब ट्रेसपासिंग तो आप सभी जानते हैं कि जहां जाना मना है वहां से गुजरे तो ट्रेसपासिंग का अपराध होता है। तो जानवरों पर ये ट्रेसपासिंग का अपराध लगाया गया। मतलब अगर आपकी कैटल जंगल में जाती है तो आपको उसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर आपकी गाय बकरी को जब्त कर लिया जाएगा। Now think of this, all of you who have been to villages or have come from a rural background, or if your grandparents were living in a village, you will understand that if your firewood is cut off, if your fodder is cut off, if your food from forest is cut off, then your life suffers heavily. अब ये कानून से इन सबको अपराधी दर्ज करा दिया और उसके बाद में ये शुरू हो गया कि जंगल में घर बनाना ये अपराध है, जंगल में रहना ये भी अपराध है। There are millions of people who were living in forest since centuries. मतलब हम अपने इतिहास में बहुत पीछे भी जाएंगे तो रामायण महाभारत में भी हमें फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के काफी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ स्टेट का जो इंटरेक्शन होता था उसके भी काफी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। So people and communities and villages living in forests was an ancient phenomenon in our country. लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना। 1864 में कानून बना, फिर 1878 में इसको रिवाइज किया गया। जब 1878 में रिवाइज किया तो इसके बारे में मद्रास गवर्नर इनवाइटेड ओपिनियंस फ्रॉम डेप्यूटी कलेक्टर्स। अभी उन दिनों में ऐसा होता था कि डेप्यूटी कलेक्टर इंडियन होते थे और कलेक्टर ब्रिटिश होते थे। तो इनसे जब ओपिनियंस मंगवाए तो दीज ओपिनियंस आर डॉक्यूमेंटेड और इन सभी डेप्यूटी कलेक्टर्स ने लिख के दिया था कि हमारे देश में ऐसा एक भी जंगल नहीं जिससे जुड़ा कोई गांव नहीं। हर जंगल से जुड़ा कोई ना कोई गांव है और हर गांव से जुड़ा कोई ना कोई जंगल है।
अभी आपने सुना होगा पुराणों में कि पंचवटी में राम सीता ये वनवास में रहते थे, और वनवास में रहते थे इसका मतलब पंचवटी में जंगल था। आज नासिक शहर आप कभी आएंगे तो पंचवटी एकदम सिटी के बीच में है। तो इन say about thousands of years ago, there used to be a forest near every village. Now some villages could continue to conserve that forest. कुछ गांव ने उस जंगल को बचाए रखा, कुछ लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन ऐसा एक भी गांव नहीं था जिसका कोई जंगल नहीं, और ऐसा कोई जंगल नहीं जिसका गांव नहीं। So this was reported by Indian deputy collectors. रामचंद्र गुहा की किताब है हाउ मच शुड अ पर्सन कंज्यूम, उसमें ये सारा इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी ऐसा हुआ कि जंगल में रहने वाले लोगों का जब राइट टू लाइवलीहुड वाज टेकन अवे, राइट टू लाइफ वाज टेकन अवे, राइट टू सर्वाइवल वाज टेकन अवे, दे नेचुरली रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। इनको अपने इतिहास में कई जगह विद्रोह कहा जाता है, जैसे वारली विद्रोह है, भिल विद्रोह है, मुंडा उल गुलान है, संथाल हुल है। तो इन सबको विद्रोह कहना ये तो अंग्रेजी शब्द हो गया। मतलब दिस वाज as British called the first war of independence of 1857 as Sepoy's Mutiny. Similarly, they called all these tribal wars of independence as mutinies or rebellions. As Indians, we should be saying that it was Warli War of Freedom, Bhil War of Freedom, Koli War of Freedom, Munda War of Freedom. Munda, Bhil, Koli, Gond, Warli, all these are big tribes in our country. Big tribes, tribes in big numbers, and tribes living over a huge area. जैसे आप अगर भिल जनजाति के बारे में सोचते हो तो ये लगभग 4 राज्यों में फैली हुई है। गोंड जनजाति के बारे में आप पढ़ते हो तो गोंडों के बड़े बड़े साम्राज्य थे। तो गोंड रानी दुर्गावती जो थी उसने अकबर की सेना को हरा दिया था। इस तरह के बड़े बड़े साम्राज्य आज जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है उनके हुआ करते थे। छोटे छोटे राजा भी हुआ करते थे, जैसे इफ यू गो टू सातपुड़ा माउंटेन्स in Maharashtra, Nandurbar, Dhule, Jalgaon, these 3 districts have these mountains of Satpura. Some part of Amravati district also comes in such ranges of mountains. इन सब में छोटे छोटे भिल राजा थे जिनके ये किंगडम्स को मेवासी स्टेट्स कहा जाता था। जवाहर में पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी एक आदिवासी राजा हुआ करता था। ऐसे अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे संस्थान भी इसमें थे। अंग्रेजों ने जो काम किया उसमें ये था कि जितना भी ब्रिटिश इंडिया था उसमें ये फॉरेस्ट एक्ट लागू हो गया। रिमेनिंग एरियाज वेयर ब्रिटिश वेयर नॉट डायरेक्टली कंट्रोलिंग द पावर, they used their merchant mind and they did agreements with small kings and princes of taking their forest produce, especially their timber. For example, in Gujarat, there is this Dangs district. और Dangs district, ये पहले मतलब if you go deep in Maharashtra history, when Maharashtra state was formed in 1960, Dang used to be with Maharashtra. There were Marathi schools in Dang district. But when negotiating with Gujarat state, Dang was given away to Gujarat instead of Mumbai. मतलब मुंबई महाराष्ट्र को दे दो और डांग गुजरात को ले लो, इस टाइप का एक नेगोशिएशन हुआ। ये डांग जिले में 5 राजा थे, इनके साथ अंग्रेजों की लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसमें अंग्रेज हार गए। हारने के बाद अंग्रेजों के ध्यान में आया कि इनको लड़ाई में हराना मुश्किल है, इनको टेबल पे हराया जा सकता है। So on an agreement table, the British government took an agreement with these 5 kings that the British shall pay 3,000 rupees per year to these kings as a compensation of timber rights of their forests. तो डांग का जंगल ब्रिटिशों ने अपने हाथ में रखा और राजा को उसका सिंहासन बरकरार रख के केवल 3,000 रुपए दिए। So similarly, in other places, British chose to exclude these areas from their administration. For a long time, they were called excluded areas or partially excluded areas. स्वाधीनता तक
ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, ऐसे सभी क्षेत्रों को पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज कहा जाता था, क्योंकि वहां पे सीधा ब्रिटिश राज नहीं चलता था, वो नहीं चला पाते थे उसको। अभी स्वाधीनता के पहले काफी सारे विद्रोह हुए, जिसमें 1870s का भिल वॉर फॉर लैंड राइट्स इज क्वाइट फेमस। अंबर ये इसमें इसकी कहानी इस तरह से है कि अ, काफी पहले हम सभी लोग लगभग we used to be hunter gatherers. Then some switched to farming at an early stage. All those communities which took to farming in an early stage, say about 8 or 9 centuries back, they took the most fertile lands near big rivers, which are frequently silted by the river flow. These are most fertile. So these lands were occupied first by the communities which took to farming for the first time. There were other communities in forests who took to shifting cultivation. आज एक जगह पर जमीन बोएंगे तो अगले साल दूसरे जगह पर खेती करेंगे, तीसरे साल और दूसरी जगह करेंगे। There used to be about 8 to 10 years of rotation. मतलब एक जगह खेती की तो 10 साल के बाद उस जगह पर बसाते थे, और खेती काफी प्रिमिटिव तरह की होती थी, मतलब जिसमें कोई फर्टिलाइजर्स और ये सब नहीं था, जिसमें औजार भी बहुत प्रिमिटिव थे। तो तरीका ये होता था कि थोड़ा सा जंगल का हिस्सा जलाओ और जलाने के बाद वहां पे खेती करो, अगले अगले 10 साल वहां पे खेती मत करो। That means the forest would naturally regenerate on that land. So this used to keep the balance of forest as well as farming requirements of a human community. तो ये जो shifting cultivation लोग करते थे, they were not aware of land rights as per the British laws. Communities which had frequent interaction with British administration, they understood कि अभी अंग्रेजों के राज में अपने नाम का आपल्या नावाचा सातबारा झाला पाहिजे। जी कुठली जमीन आपल्याला शेतीसाठी पाहिजे, वस्तीसाठी पाहिजे, त्याचा सातबारा आपल्या नावावर झाला तर ती जमीन आपली। त्यामुळे जे स्थिर शेती करणाऱ्या जाती जमाती होत्या, त्यांनी अशा जमिनींवर कब्जा करायला सुरुवात केली। त्यांनी त्या जमिनींना कुंपण घातलं, त्याच्यावर आपलं नाव लावून घेतलं। And Bhils and other forest dwelling tribes which continued shifting cultivation, उनके ये ध्यान में भी नहीं आया कि लोग जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। वो जब 8-10 साल के बाद घूम के उसी जमीन पर आए तो उनके ध्यान में कि जमीन किसी ने कब्जा कर ली है और उसके पास कानूनन कोई कागज भी है। Now, there were no schools, no source to literacy, so paper became an enemy since a late 1870s. जिस कागज को पढ़ नहीं सकते लेकिन उस कागज में सारी ताकत है, वो कागज ने जमीन के मालिकाना अधिकार किसी को दे दिए। अब इस जमीन पर मैं खेती नहीं कर सकता। इस ढंग से धीरे धीरे काफी सारी जमीनें नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज के हाथ में चली गई। When the tribals noticed this, that their area of traditional cultivation was being usurped by other communities, by other people, and it was being grabbed, they were being deprived of their land for survival, they naturally took up a war. अब किस तरह की जंग लड़ सकते थे, तो जो भी हथियार उनके पास थे, तीर कमान थे, कुल्हाड़ी थी, उसको लेके उन्होंने अपनी जंग छेड़ी। So 1870s we saw one Bhil war for land rights. In 1850s there was in Jharkhand there was Santhal war for similar issues. In 1900 there was Munda tribes war for similar issues. All over the country we see more than 70 wars of this kind happening for land and forest rights. जिस पर अपना जीना मरना है, उस जमीन के लिए, जंगल के लिए लड़ना ये जरूरी बन गया। उसके बिना जमीन अपने हाथ में नहीं रहेगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसको समझकर लोग लड़ते रहे, कई जगहों पर हारते रहे, बलिदान होते गए, लेकिन लड़ाई चलती रही क्योंकि ये जीने मरने की लड़ाई थी। And now telling you stories of pre-independence days. In 1927, Indian Forest Act was passed, which again took all entire colonial hold of forest in the hands of forest bureaucracy. And what was the purpose of this Forest Act? The purpose was to control the trade and transit of timber in India. अभी भी आप जाके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की किताब खोलेंगे तो पहले पन्ने पर ये पढ़ने को मिलेगा।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट एक्ट, इनका फॉरेस्ट कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना है टिम्बर से, टिम्बर की कंट्रोल से, और केवल वो कंट्रोल चाहिए, इसलिए वो जंगल में और किसी को रहने देने के लिए तैयार नहीं थे। This Act of 1927 has continued till date. It's applicable even today, the Indian Forest Act of 1927. लेकिन 2006 में अपनी संसद के ध्यान में ये बात आ गई। उस समय की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस बात को मान लिया कि जंगल में रहने वाले लोगों के जीने के अधिकार छीने गए, and these rights to survival must be recognized. So there was an act, a law passed by Indian Parliament in 2006 called Forest Rights Act or FRA. तो ये जो कानून बना, वन अधिकार कानून, उसका इम्प्लीमेंटेशन पिछले 10-12 साल से अपने देश में चल रहा है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी राइट्स रिकॉग्निशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी भी उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। But now there is a legal assurance to forest dwelling communities that they shall not be evicted from the lands where they depend for their survival and livelihood. अभी स्वाधीनता के पहले से आज तक काफी सारी मूवमेंट्स, काफी सारी विचारधाराओं ने इन जंगल के क्षेत्रों में, इन जनजातीय क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में अपना अपना काम किया है। There were different ideologies, different ideas about the empowerment and development of tribal communities. एक विचारधारा ये थी कि ये जो जनजातीय समाज है उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, उनके यहाँ रोड्स अच्छे बनने चाहिए, उन्होंने शहरों में आना चाहिए, शहरों को वहां तक का कनेक्ट मिलना चाहिए। दिस वाज कॉल्ड असिमिलियनिस्ट आइडियोलॉजी। कि असिमिलिएशन मतलब क्या कहते हैं इसको, शामिलीकरण, मतलब बाकी कम्युनिटीज और रिमेनिंग सोसाइटी के साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को जोड़ा जाना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, रोड्स बनने चाहिए। सो दिस वाज वन आइडिया। दिस वाज पुट फोर्थ बाय A.V. ठक्कर, who was popularly called ठक्कर बापा। अभी आप में से जो लोग आदिवासी एरिया में आते जाते हैं, योजनाओं से परिचित है, उनको मालूम होगा कि महाराष्ट्र शासन की पिछले लगभग 40-45 साल से ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना है। अब ये जो ठक्कर बाप्पा नाम है, ये उनका नाम है, A.V. ठक्कर, जो एक गांधीयन लीडर थे, कांग्रेस, मतलब ये स्वाधीनता के पहले की जो कांग्रेस थी उसके लीडर थे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चेयरमैन थे, उस कमेटी की एक सब कमेटी थी ट्राइबल एरियाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन हो तय करने के लिए। उसके चेयरमैन ठक्कर बापा थे। ठक्कर बापा का ये मानना था कि इन सभी क्षेत्रों में अगर हेल्थ केयर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबका डेवलपमेंट होता है, फार्मिंग का डेवलपमेंट होता है, तो देयर विल बी बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, बेटर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज आइसोलेशनिस्ट। दिस वाज पुट फोर्थ बाय वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन was a British by birth who later on took Indian citizenship after independence. Verrier Elwin was a missionary, Christian missionary. Later on, he left church and joined Gandhiji in his Gandhian movement. Then he left Gandhi and then he founded his own institute of tribal research in Madhya Pradesh. Then he went to Northeast. What was Verrier Elwin saying? Elwin's idea was that tribals have their own culture, their own way of life, so they should be protected and kept away from urban. Hello. 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 So your audio is not heard. Hello. Hello, Tatte sir. Hello. We can't hear you, sir.
Hello. अब मेरी आवाज आ रही है? There is little echo, but it is heard now. We can hear you now. ओके, ठीक है, मैंने अभी माइक हटा दिया है, तो अगर आवाज में फिर प्रॉब्लम होती है तो जरूर बताइए। नहीं, sir, it is okay now. ठीक है, ठीक है। Please carry on. Thank you. हाँ। So Elvin put this idea of having sanctuaries or reserved areas for tribals. एक संरक्षित क्षेत्र हो जनजाति के लिए, जिसमें बाहर का कुछ नहीं आना चाहिए। That was his idea. अभी ये दोनों तरह से लोगों ने काम किया है इस पर, ये अलग रखने के लिए भी काम किया है, इसको इस साथ में जोड़ने के लिए भी काम किया है। आप सभी जो ऑडियंस है, यू ऑल्सो कैन अलाइन टू वन स्कूल विच वुड बी बेटर, क्योंकि दोनों के अपने अपने प्रोज कॉन्स है, दोनों के फायदे है, दोन्हीचे तोटेपण आहेत. At the same time, there were people of different ideologies who started working with these ideas in their mind in tribal areas. उसमें से कुछ गांधीयन लोग थे, गांधीवादी लोग थे, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इस पर काम करना शुरू किया था, जिसमें जैसे मैंने कहा ठक्कर बाप्पा थे। महाराष्ट्र में काफी सारे नाम हैं जो गांधीवादी और सर्वोदयी विचार से आदिवासी क्षेत्र में काम करते थे। उसमें से एक जो सबको जरूर मालूम होना चाहिए, अपने मुंबई से करीब ठाणे जिले में कईनाड नाम का एक गांव है। वहां पे वसंत नारगोलकर और कुसुम नारगोलकर, ये दोनों पति पत्नी रहते थे। तब ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र था और काफी सारा सेवा कार्य उन्होंने वहां पे किया। उनकी लिखी एक किताब है जंगल से राजे, जिसको जरूर पढ़ना चाहिए कि ये लगभग 1935-36 में लिखी हुई किताब होगी। उस समय की जीवन पद्धति क्या होती थी वो सब उसमें उन्होंने लिखा है। उसी तरह से आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के भी अलग अलग संगठनों ने इस क्षेत्र में काम किया। उसमें से सबसे बड़ा संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम। They also focused on health and education. So they ran hostels and schools in these areas in big numbers. In various parts of Maharashtra, you can still find Vanvasi ashrams and hostels being run. They also continued to have one Arogya Rakshak scheme, which is like a barefoot doctor, a volunteer from a village trained in basic health service. There were also education campaigns run. For example, there is one Ekal Vidyalaya campaign which started one teacher schools in remote hamlets where there was no school. This was before Sarva Shiksha Abhiyan, when government schools were not available. So they focused on primary education. There were Christian missionaries associated with various churches and organizations. In Maharashtra, the notable have been the Church of North India and the Jesuit Mission. There are also small NGOs associated with these organizations. They also focused on health, nutrition, and on education. You can find big hostels and schools in very remote places in many districts of Maharashtra run by Christian missionaries. So these three were basically taking up services, development services to tribal communities. There were also organizations which took up farming, improvement of agriculture, the biggest being BIAF. Full form is Bharat Agro Industries Foundation. This BIAF has been working for last about 50 years in various parts of Maharashtra as well as other states, developing tribal agriculture. There were, as I mentioned earlier, there were also movements and struggles to get land rights and forest rights. I will only quote a few movements over here. One notable being in 1970s, there was a struggle, a campaign, an Andolan by Bhil farmers led by Ambar Singh Maharaj Suratwanti. अंबर सिंग महाराज हे भिल समाजामधले एक आध्यात्मिक पुरुष होते, सामाजिक नेते होते. पण अंबर सिंग महाराजांना हे बघवेना की भिल्लांच्या जमिनी
त्या ठिकाणचे गुजर, राजपूत असे वेगवेगळ्या जातींचे जे जमीनदार होते त्यांनी कब्जात घेतलेल्या होत्या आणि त्या शेतीतलं काहीच उत्पन्न या मूळच्या भिल्ल शेतकऱ्यांच्या कुळांच्या हातात येत नव्हतं. सो इन 1970s this आंदोलन rose in Satpura, which is now Nandurbar district, Jalgaon district. So this was well documented by a Marathi journalist of that time, Sriga Masgaonkar. माणूस नावाचं एक साप्ताहिक ते चालवायचे, त्याच्यामध्ये या लढ्याची खूप मोठी माहिती त्या काळात आली होती. You will also find EPW articles about this bill struggle for land rights in 1970s. Now this is quite a mockery that the previous bill struggle was in 1873 and this one was in 1972. So 100 साल बीतने के बाद भी अपनी जमीन के लिए बिलों को संघर्ष करना पड़ रहा था. ये दोनों विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, इस पर काफी लिखा गया है. दूसरा जो स्ट्रगल है जो महाराष्ट्र के आदिवासी इतिहास में बड़े मायने रखता है, which is popularly known as Warli Revolt, led by Comrade Godavari Parulekar of Communist Party of India, Marxist. इसको दो बार काफी प्रभावी ढंग से उछाला गया, एक 1948 में, एक 1956-58. This again was a movement by tribals for land rights against जमींदार्स, और ये अलग अलग जमींदार थे, इसमें पारसी जमींदार थे, ईरानी जमींदार थे और बाकी जाति समाज धर्म के भी जमींदार थे. इन सभी जमींदारों के विरोध में वारली जनजाति के हजारों लोगों ने उस समय सत्याग्रह किया, आंदोलन किया और जमीन के अपने अधिकार वापस लेने की काफी बड़ी लड़ाई उस समय लड़ी. उसके बाद में महाराष्ट्र में इसके बारे में कानून बनना शुरू हो गया. मतलब ये जो लैंड राइट्स के लिए बिल स्ट्रगल हुआ था, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड सम एक्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट आल्सो पास्ड सम एक्ट्स टू रिकॉग्नाइज लैंड राइट्स ऑफ ऑल दिस पीपल. उसके बाद मैं और एक आंदोलन के बारे में खास यहाँ आप सबको बताना चाहूंगा. रायगढ़ जिले में ठाकर और काटकरी जनजाति के काफी किसान रहते हैं और वहां की सिस्टम ये थी कि शादी के लिए कर्जा देते थे जमींदार लोग. वहां पर ज्यादातर मराठा, कुंभी, ब्राह्मण इस समाज के जमींदार हुआ करते थे. ये जमींदार शादी के लिए काटकरी या ठाकर को कर्जा देते थे. ये कर्जा बहुत थोड़ा सा होता था, 500 रुपया 700 रुपया होता था, और उस कर्जे को चुकाने के लिए पीपल हैड टू वर्क एज बॉन्डेड लेबर. मतलब जिसकी शादी हुई है वो लड़का और लड़की, मतलब उसकी पत्नी, ये दोनों को वो कर्जा चुकाने तक जमींदार के यहाँ बिना वेतन काम करना पड़ता था. There used to be other atrocities, physical atrocities, sexual atrocities coupled with this. This bonded labor was not just an economic exploitation, but it was also physical and social exploitation. या सगळ्या पद्धतीला लग्नगडी असं नाव होतं. आणि तुम्हाला नवल वाटेल की जेव्हा याच्या केसेस कोर्टात आल्या, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये 1970s के बाद में 1980s की बात कर रहा हूं, जब इनके कोर्ट केसेस हुए और कोर्ट में ये बताया गया कि कुछ लग्नगड़ी जो थे उनके दादा ने कर्जा लिया था. सो दे वर ट्राइंग टू pay back that loan for 3 generations. Some were paying it back for 2 generations. Some were bonded labor for 20 years. And for how much? कितने पैसे के लिए? तो कभी 25 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 100 रुपया. What the landlords used to do was they will take this, they will give money for marriage. After that, they will do some gafla in calculating the interest. एंड इन अगेन ऑन फेस्टिवल्स, तभी दिवाली आ गई, होली आ गई, तो फिर वो शराब की बोतल देंगे, थोड़ा सा चावल देंगे, एक नया कपड़ा देंगे और उसका जो अमाउंट होगा वो ब्याज में ऐड करते थे. तो अगले साल और ब्याज बढ़ जाता था. मतलब 10 रुपए का जो कर्जा लिया था वो बढ़ते बढ़ते कभी कभी 100, 200, 1000 रुपए तक जाता था. सुरेखा दलवी, एन एक्टिविस्ट by from her Sarvodaya background,
she founded an organization called Shramik Kranti Sangatna in Raigad district. And this organization fought a long struggle against this Lagnagadi system. They liberated lot of Lagnagadis from this. अभी जैसा अभी मैंने कहा कि ठाकर और कातकरी ये दो ट्राइब्स के बारे में मैंने बता रहा था, उसमें से कातकरी ये जो जनजाति है, द वर्ड कात मराठीमध्ये कातच म्हणतात त्याला, जे पान खातात लोक त्याच्यात चुना आणि कात टाकलेला असतो, हिंदी में उसे कत्था कहते हैं. तो ये कत्था जंगल के खैर नाम के एक पेड़ के तने से निकाला जाता है, और कत्था निकालने के लिए एक फर्नेस बनाना पड़ता है, मतलब भट्टी लगानी पड़ती है. उस भट्टी में देयर हैज टू बी कंट्रोल्ड हीट, एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है कई घंटों तक. उसके बाद में वो कत्था जो है मेल्ट होता है और बाहर निकाला जा सकता है. दिस वाज द स्किल विथ कातकरी ट्राइब, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड कातकरी. कात काटणारे ते कातकरी. गुजरात में इनको कथोड़ी कहा जाता है, कई जगह पर कथोड़िया कहा जाता है, महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पे काथोड़ी कहते हैं, कातकरी कहते हैं. लेकिन इनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था दैट वाज एक्सट्रैक्टिंग कत्था फ्रॉम खैर ट्री. अभी ये तो गैर कानूनी हो गया फॉरेस्ट एक्ट के कारण, तो फिर लोगों ने ये काम शुरू कर दिया कि जमींदारों ने कुछ जगह पे कोयले की भट्टी लगाना शुरू किया, मतलब मेकिंग चारकोल फ्रॉम वुड. और ये कोयले की भट्टी के लिए कातकरी वेयर हायर्ड एज स्किल्ड लेबर. इसके बाद में ये भी प्रोहिबिटेड हो गया. Then this community which was skilled in making furnaces, they switched to brick kilns and दारू भट्टी. जो गावठी दारू बनाई जाती है उसकी भट्टी कैसे लगाना, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना, they know very well. Then they also know कि ईट भट्टी में टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, अच्छी ईटों को कैसे बनाया जा सकता है. If you go to brick kilns in many parts of western Maharashtra, you will find that Katkaris are hired as skilled labor. लेकिन इसमें भी उनको एडवांस देके उनका कुछ मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है. To avoid exploitation, what is required is empowering the people with basic knowledge of their legal rights. अभी मैं जिस संगठन का काम करता हूँ, वयम नाम का हमारा एक संगठन है. अभी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, और एक्टिविस्ट कभी अकेला काम नहीं करता, उसके साथ एक कारवां चलता है. सो माय कारवां इज कॉल्ड वयम. वयम, द वर्ड वयम मीन्स वी, एंड वी हैव फोकस्ड इन लास्ट 10-12 years on empowering people with the knowledge of existing legal rights. अभी जो भी कानून है, जैसे भी कानून है, उसमें जो भी अधिकार लोगों के हाथ में है, उसकी सही जानकारी अगर लोगों को हो और उस कानून का उपयोग करने के लिए लोग अगर इकट्ठा आए, तो काफी सारी चीजों को बदला जा सकता है, काफी बदलाव लाया जा सकता है. आई विल गिव वन स्मॉल एग्जांपल. देयर इज अ एक्ट कॉल्ड पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज. ये पेसा एक्ट कहता है कि ट्राइबल हैबिटेशन जो है, छोटा सा जो आदिवासी गांव है, उस गांव के सभी वोटर्स इकट्ठा बैठेंगे तो उसे ग्राम सभा कहा जाएगा. एंड दिस ग्राम सभा हैज राइट टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स इन देयर विलेज. मेरे गांव में सरकार की अलग अलग एजेंसी से कौन सा काम होना चाहिए, क्या प्रायोरिटी है हमारी, ये तय करने का अधिकार उस गांव की ग्राम सभा का है. Now my organization educated some villages on this right. So they started conducting a Gram Sabha. When initially they started conducting a Gram Sabha, the bureaucracy as well as some political leaders mocked at them. उनकी हंसी उड़ाई थी कि ऐसा गांव में बैठ के ग्राम सभा होके कुछ नहीं होने वाला है. But over last 1 year, year and a half, people have seen that lot of differences happened. जे जे काम लोकांनी ठरवलं ग्रामसभेत बसून, त्याचा आराखडा बनवला, त्याचे ठराव केले, ते सरकारकडे दिले, सरकारकडे त्याचा फॉलोअप केला आणि त्याच्यातली अनेक कामं गावामध्ये झाली. द सेम लॉ गिव्स पीपल, द असेंबली ऑफ पीपल ऑफ दैट विलेज, टू गिव यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टू गवर्नमेंट वर्क्स. अभी आपको शायद मालूम होगा कि गवर्नमेंट वर्क्स में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इज अ बिग डॉक्यूमेंट. इट्स अ वाइटल डॉक्यूमेंट
for contractors to get their last installment of payment. आधा अधूरा काम किया, खराब काम किया और अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो काम का पैसा पूरा गवर्नमेंट से नहीं दिया जाता। और ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का अधिकार गांव की ग्राम सभा का है, ग्राम पंचायत का या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का नहीं है। When people learned about these provisions in laws, they naturally started using these provisions. और अभी उनके गांव में कोई खराब काम करने से डरता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यहाँ के गांव वालों को अपने अधिकार मालूम है। People also continued to demand कि ग्राम पंचायत ने अपना सारा इनकम एक्सपेंसेस बैलेंस शीट ग्राम सभा के सामने रखना चाहिए। Now all of us know that Prime Minister and Chief Minister always have to present the budget before the legislature. Unless legislature approves it, executive cannot spend the public money. The same logic applies at village level. Gram Sabha is like Lok Sabha, Vidhan Sabha, it is the legislature. And Sarpanch and Gram Panchayat body is the executive. Now, executive to spend the money that it has must have a mandate from the Gram Sabha. और ये बात ग्राम सभा को अब तक पता नहीं थी। अब जैसे पता चल गई है तो ग्राम सभाओं में अटेंडेंस लोगों का बढ़ गया है, असर्टिव लॉजिक बढ़ गया है, लोग वहाँ हिम्मत से बात करते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि इतना सारा पैसा इस खराब काम में नहीं जाना चाहिए, इस काम में जाना चाहिए। तो पीपल चूज देयर प्रायोरिटीज। और लोगों की बहुत छोटी, बहुत कम अपेक्षाएं रहती है। Now, all of you being in city, I don't want you all to answer in public, लेकिन आप कोशिश कीजिए मुझे ये बताने की कि एमएलए का काम क्या होता है, एमपी का काम क्या होता है और कॉर्पोरेटर का काम क्या होता है। जब लोकसभा की इलेक्शन आती है तब भी मैंने देखा है लोकसभा इलेक्शन में people in cities who are quite educated, they ask the candidate why the roads are bad. अभी रास्ते, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये किसका काम है और अब किसको पूछते हैं? लेकिन लोगों की अपेक्षाएं इतनी छोटी छोटी होती है। The same happens in villages. People are same everywhere. So in villages also, people ask the Gram Panchayat as well as people who come to ask for votes about these simple things. And when people learn that their Gram Sabha, their village assembly has the rights to decide the priorities of development, they consider themselves to be मायबाप. अभी आता खूप वेळा तुम्ही ऐकलं असेल की मायबाप सरकार असं म्हटलं जातं, म्हणजे सरकार आपली सगळी काळजी घेणार आहे आणि आपण फक्त बसून बघायचं आहे किंवा मागायचं आहे। हम लोग ने सिर्फ मांग करनी है, बाकी तो सब सरकार करेगी। That's not democracy. No, I mean, being students of political science, all of you must be knowing that democracy is government by consent. Democracy is a government where people are responsible and government is responsive. सरकार उत्तरदायी होती है, सरकार ने जवाब देना है। किस चीज को जवाब देना है? तो जो मांगे, जो प्रश्न जनता उठाएगी। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये सब उठाने की? तो वो नागरिकों की है। अगर नागरिक जिम्मेदार है, नागरिक जागरूक है, तो फिर सरकार रिस्पॉन्सिव होती है, प्रतिसादी होती है। Now, people in tribal villages associated with my movement, Vayam movement, have understood this idea of democracy. तो वो अभी अपने राइट्स को असर्ट कर रहे हैं। There are existing rights. जैसे ये पेशा का मैंने बताया, उसी तरह से फॉरेस्ट राइट्स है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी there are rights on land and forest. So this is also very pro people legislation passed in 2006. इसका भी बड़ी भारी मात्रा में उपयोग लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। When democracy starts delivering, extremism becomes redundant. किसी भी तरह का आतंकवाद हो, आतंक मतलब एक अतिरेकी, कुठलीही अतिरेकी विचारधारा असेल की जी काहीतरी एकदम टोकाचं सोल्युशन प्रॉमिस करते की आपण आता जे आहे ते सगळं उलटून टाकू, अभी जो भी व्यवस्था है उसको पूरा उल्टा कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, उसके बाद पूरा स्वर्ग खिल जाएगा। These types of promises are made by all extremist movements. लेकिन जब लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि जनतंत्र की व्यवस्था से ही
अपने न्याय अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। न्याय मिल सकता है, अधिकार मिल सकते हैं, तरक्की हो सकती है, तो लोग जनतंत्र की व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जनतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। तो इस बात को ये केवल ट्राइबल्स के लिए नहीं है, ये नॉन ट्राइबल्स के लिए भी है, ये सिटीज के लिए भी है, विलेजेस के लिए भी है। People being responsible, government being responsive. In current times, what I see as a tribal issues analyst or student, I see that in all tribal areas of Maharashtra, land and forest rights are basic rights to livelihood. If there is access to these natural resources for local people, then their prosperity is assured. आदिवासी विकास का जो सच्चा रास्ता है वो स्थानिक लोगों को, गांव में रहने वाले लोगों को उनके जल, जंगल, जमीन पर अधिकार देने का रास्ता है। इसको ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उस तरह से, उसी ढंग से, उसी गति से देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि होगी आदिवासी क्षेत्रों में और स्थिरता भी होगी, which will result in overall ecological environmental dividend to the entire state. तो इस आशा के साथ, with this hope that we will join hands in bringing stability and prosperity to all our citizens, I conclude my speech. Thank you, everyone. Thank you so much. ऐकू येत आहे ना? मिलिंदजी, थँक्यू सो मच. आपण या लेक्चरसाठी जे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्लोट केलेला होता त्याच्यामध्ये काही प्रश्न आलेले होते. मी ऑलरेडी चॅट बॉक्स सुद्धा ओपन केलेला आहे. सो इफ पार्टिसिपंट्स स्टिल हॅव टू आस्क एनी क्वेश्चन्स यू कॅन पोस्ट इन द चॅट बॉक्स. But there are some questions which are there, which have been already sent by various students. So if I ask you a few questions from that, and if you can respond to that, I think many of the questions will get automatically answered. So there is first question which is about what could be done by government in response to movements like Naxalism. That is the first question. Then what is the main motive of tribal movement and what are the challenges in communication between tribals and government? So if you can take these two questions first, we can later proceed to next questions. Thank you, sir. So, well, to understand Naxal movement, we should read and learn a little more about the background of this movement. I don't think calling it Naxal movement is the right word. It is actually Maoist extremism, which began in a village called Naxalbari in eastern India. अभी मैं जो देखता हूँ उसमें ऐसा है कि अन्याय तो होता है, there is injustice, there is also deprivation. मतलब एक वंचना आणि अन्याय या दोन्ही गोष्टी घडतात. जे लोक दुर्बल आहेत त्या सगळ्यांवर अन्याय होत असतो. त्यामुळे दुर्बलांनी एकत्र येणं आणि आपण एकत्र येण्याचं बळ वापरून अन्याय मिटवणं हे सगळीकडे करावं लागतं, होत असतं. त्याच्यात हे जे माओइझमची आयडिओलॉजी आहे ती असं मानते की चेंज विल बी ब्रॉट फ्रॉम द बॅरल ऑफ अ गन. बंदुकीच्या नळीतून क्रांती घडेल, दुसऱ्या कुठल्या मार्गाने नाही. त्यामुळे थेट हिंसाचाराला प्रोत्साहन द्यायचं आणि अन्याय करणाऱ्या व्यक्तीला मारून टाकायचं, असं थोडक्यात नक्षलवादाचं स्वरूप असतं. आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की अन्याय करणाऱ्या व्यक्तीला मारला तर दुसरी अन्याय करणारी व्यक्ती तयार होते. अन्याय करणारी व्यवस्था जर संपवायची असेल तर त्यातल्या काही व्यक्तींना हिंसक पद्धतीने मारून टाकणं हा उपाय अनैतिक पण आहे आणि त्याचा काही उपयोग पण होत नाही, तो प्रभावी पण नाही. अन्यायाचं मूळ कशामध्ये आहे तर अन्यायाचं मूळ हे सत्तेच्या केंद्रीकरणामध्ये आहे. पीपल हुज लाईव्हलीहूड इज ॲट स्टेक, if they don't have the rights to improve their livelihood, injustice becomes chronic.
लोकांचं जगणं ज्या ज्या नैसर्गिक संपत्तीवर अवलंबून आहे, म्हणजे मी मगाशी म्हटलं तसं जल, जंगल, जमीन या 3 गोष्टींवर लोकांचं जगणं अवलंबून आहे. या तिन्हीचे अधिकार जर लोकांच्या हातात असतील आणि लोकांच्या म्हणजे काही वेळा ते व्यक्तींच्या हातात, जसं शेतीचा अधिकार आहे तो व्यक्तींच्या हातात आहे. पण एकूण गावाचं जंगल आहे, गावातले पाण्याचे स्रोत आहेत, हे सगळं सामूहिक संपत्ती असते. आणि ही सामूहिक संपत्ती गावाचं एक कलेक्टिव्ह विजडम, एक समूहाचं शहाणपण जे गावात असतं, तेच एखाद्या जातीच्या नावावर जर मोठ्या प्रमाणात एकत्र आले तर ते सगळं शहाणपण हरवून बसतं. पण गावात नेहमीच सहचर असल्यामुळे, गावातल्या लोकांना सतत एकत्र जगायचं असल्यामुळे त्यांच्यात एक समतोल असण्याची शक्यता, संभावना खूप जास्त असते. त्यामुळे ग्रामसभा हे जे एक छोटंसं युनिट आहे, बरं ग्रामसभा ही थेट लोकशाही आहे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आहे, त्याच्यात रिप्रेझेंटेशन नाही आहे. ऑल वोटर्स आर अ पार्ट ऑफ ग्रामसभा. त्यामुळे तिथे थेट बसून थेट लोकशाही पद्धतीने आपली प्राधान्य लोकांनी ठरवली, आपले प्रश्न सोडवू शकले, त्याच्यासाठी पुरेसा निधी सरकारकडून त्या ग्रामसभेच्या हातात असेल तर लोक आपले प्रश्न सोडवतील, मग नक्षलवादाची गरज राहणार नाही. सरकारने बराच काळ नक्षलवादाकडे एक लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम म्हणून पाहिलं. म्हणजे एक हिंसक चळवळ आहे, त्यामुळे गोळीला गोळीने उत्तर द्यायचं आणि जे जे कोणी नक्षलवादी होतील, काही संशयित असतील, काही खरे असतील, पण ते कसेही असले तरी त्यांना तुरुंगात टाकायचं किंवा त्यांच्या अपराध प्रमाणे ठार मारायचं. त्यामुळे गोळीला गोळीने उत्तर असं सरकारने केल्यामुळे या समस्येचं जे मूळ होतं, विच वॉज डिप्रायव्हेशन फ्रॉम ऍक्सेस टू रिसोर्सेस, नैसर्गिक संसाधनांवरच्या हक्कापासून वंचना, हे जे मूळचं दुखणं होतं ते दुरुस्त झालं नाही. त्यामुळे तो इतका काळ हा प्रश्न चिघळला. तर आता सरकार प्रयत्न करत आहे, पण सरकारचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. त्याच्याबरोबर जागृत नागरिकांनी पण त्यात सहभागी झालं पाहिजे. तर मग आपल्याला अशी स्थिती आणता येईल की जिथे नक्षलवादी व्हायची गरजच राहू नये. Dr. Minal, can you tell me the second question again because I forgot it. What is the main motive of tribal movement and challenges in the communication between tribals and government? आता याच्यामध्ये असं आहे की पुष्कळ भाषा बोलल्या जातात वेगवेगळ्या, आणि अनेकदा या भाषांमध्ये, या भाषांचं आणि मराठीमध्ये काही खूप साधर्म्य असतं असं नाही. जसं कोरकू भाषा आहे, कोलामी भाषा आहे, या भाषांचं मराठीशी काही साधर्म्य नाही. वारली, भिल या काही भाषा आहेत ज्याच्यामध्ये गुजराती, राजस्थानी आणि मराठी असे अनेक शब्दांची सरमिसळ आहे. पण या भाषांची एक अडचण पूर्वी या खूप भागामध्ये येत असे. आता अर्थात शालेय शिक्षण सगळीकडे पसरल्यामुळे भाषेची खूप अडचण नाही. बट व्हॉट आय सी इज देअर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग वर्ल्ड व्ह्यूज. म्हणजे जो जंगलाजवळ राहणारा माणूस आहे तो एका वेगळ्या पद्धतीने त्याच्या निसर्गाकडे बघत असतो. तसंच सरकारला बघता येतं असं नाही. प्रत्येक गोष्टीतून काहीतरी पैसे काढायचे, उत्पन्न मिळवायचं, ही आपली आधुनिक संस्कृती आहे. जे लोक निसर्गाजवळ राहतात त्यांच्यामध्ये ही भावना इतकी प्रबळ नसते. म्हणजे मी असं म्हणत नाही की त्यांना पैसे नको असतात, पैसे सगळ्यांनाच लागतात, पण प्रत्येक गोष्टीचं रूपांतर मला पैशात करता आलं पाहिजे. माझा थोडासा वेळ वाया गेला तरी मग माझी प्रोडक्टिव्हिटी कमी झाली, असं सगळं विचार ही माणसं नाही करत. आणि त्यामुळे अनेकदा गव्हर्नमेंट आणि ट्रायबलच्या कम्युनिकेशन मध्ये गॅप राहते. बिकॉज गव्हर्नमेंट हॅज गोल्स दॅट आर फिक्स्ड फ्रॉम अ हायर लेवल, फ्रॉम अ मॅक्रो लेवल. म्हणजे आता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स हे अख्ख्या जगाचे ठरलेले आहेत. पण जो गावात राहणारा सामान्य नागरिक आहे त्याच्यासाठी त्याच्या गावापुरतीच गोल्स असतात. त्याच्या गावातल्या निसर्गाचा समतोल राहावा, तिथलं पाणी भरपूर राहावं, पाणी स्वच्छ राहावं, झाडं झुडपं व्यवस्थित आणि भरपूर राहावीत, फळं फुलं भरपूर यावीत, ही त्याची कल्पना असते, हे त्याचे गोल्स असतात. आणि गव्हर्नमेंटचं जे आहे थिंकिंग ते मॅक्रो लेवलवर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सशी कनेक्ट करण्याचं असतं, काही वेळेला मार्केट इकॉनॉमीशी कनेक्ट करण्याचं असतं. यामुळे सुद्धा गव्हर्नमेंट ट्रायबल कम्युनिकेशन मध्ये गॅप्स असतात, इश्यूज येतात असं मला वाटतं. बरोबर आहे सर. बरेचदा आपण शहरी लोक आपल्या नजरेतून बघायला
त्यांच्या समस्यांकडे बघायला बघतो. म्हणजे कदाचित आपल्याला ज्या समस्या जाणवतात त्या त्यांच्या लेखी समस्या नसतील सुद्धा. जे तुम्ही जो म्हणालात की मॅक्रो लेवलचं प्लॅनिंग किंवा प्लॅनिंग फ्रॉम अबाव, याच्याने सुद्धा काही प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात. इनफॅक्ट पुढचे 1-2 प्रश्न त्याच्याशीच निगडित आहेत. हाऊ वी कॅन ब्रिंग व्हॅल्यूज टू द लाईफ ऑफ ट्रायबल्स. तर हा क्वेश्चनच ट्रिकी आहे की आपण त्यांच्या आयुष्यामध्ये काही व्हॅल्यूज आणणं हे असा अप्रोचच मुळात बरोबर आहे का, असं मला विचारायचं आहे. हाऊ कॅन वी ब्रिंग व्हॅल्यूज टू द लाईफ ऑफ ट्रायबल्स, असा एक प्रश्न आलाय. आणि दुसरा एक प्रश्न हिंदीमध्ये विचारलाय. 21वीं सदी में आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा के नाम पर उन्हें आधुनिक बनाया जा रहा है, तो ऐसे में उनकी संस्कृति, भाषा और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली शिक्षा व ज्ञान अब लुप्त होते जा रहे हैं, तो हम इसे किस तरह बचा सकते हैं? That was another question. ओके, अभी ये जो आखिरी प्रश्न पूछा है ये मेरे भी बहुत मतलब दिल के करीब वाला प्रश्न है। एक तो ऐसा है कि मार्केट ये एक बड़ा ओमनीपोटेंट फोर्स है। दिस इज लाइक सम सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब जगह होता है, वैसा ये ओपन मार्केट है कि जो कहीं भी घुस सकता है, कुछ भी छीन सकता है। All of us are aware that social media is taking away all our privacy. That also is an exploitation, and which is possible because of open market, because of technologies. ये सब से आदिवासी क्षेत्र को, आदिवासी गांव को अलग नहीं रखा जा सकता। ये सब तो वहां पहुंच ही गया है ऑलरेडी। और एक तरफ ऐसा है कि जो आज मेरी पीढ़ी के, मुझसे युवा, जो आप सभी स्टूडेंट्स के एज ग्रुप के जो ट्राइबल यूथ है, they also have aspirations of having modern technologies in their pocket. उनको जैसे आप सबको स्मार्टफोन चाहिए, उनको भी स्मार्टफोन चाहिए। जैसे आप सबको अलग अलग फैसिलिटीज चाहिए, अमेनिटीज चाहिए, टैप वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब चीजें वहां पे भी चाहिए। यू कैनॉट हैव मतलब क्या बोलते हैं, बिना गुठली का आम नहीं मिल सकता। आपको आम चाहिए तो गुठली भी उसके साथ आएगी। सो व्हेन अ कम्युनिटी ओपन्स अप to the world, accepting inroads, then only they get outroads. कुछ अंदर आने देंगे तभी बाहर जाने का रास्ता खुलता है। तो दिस हैज टू बी एक्सेप्टेड। ये अच्छा है कि नहीं, इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन ये होने वाला है कि नहीं, तो ये होने वाला है। सो व्हाट माय ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वर्क ऑन, और दिस इज माय व्यू, इज दैट पीपल शुड बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। As students of political science, all of you know this term very well, informed choice. This is something very basic to democracy. Informed choice म्हणजे काय, तर माणसाला निवड करण्याचा अधिकार हा माहितीच्या आधारावर असला पाहिजे। म्हणजे कसं की समजा माझी संस्कृती मला असं शिकवते की जंगलातली अमुक अमुक फळं आहेत, ती या सणाच्या आधी तोडायची नाही। जसं की आता मी ज्या भागात राहतो, जव्हार, मोखाडा, तिकडे अशी पद्धत आहे की होळी होईपर्यंत जंगलातून आंबे म्हणजे कैरी तोडायची नाही। आता समजा माझ्याकडे एखादा व्यापारी आला आणि तो म्हणाला की मी चांगली किंमत देतो, मला होळीच्या आधी आंबा पाहिजे। नाउ दिस चॉईस इज ऑन मी। आता मी याच्यात निवड करायची की मी माझी परंपरा पाळून तो आंबा तोडू नको का या व्यापाऱ्याकडून पैसे मिळतात म्हणून त्याला आंबा देऊन टाकू। आंबा होळीच्या आधी का नाही तोडायचा, तर त्याच्यामुळे निसर्गाचं चक्र अबाधित राहतं। पण या व्यापाऱ्याला कशाला द्यायचा, तर त्याच्यामुळे मला पैसे मिळतात। नाउ हू विल मेक दिस चॉईस? As a कट्टर डेमोक्रॅट, I believe that the man or the woman living in that village who is faced with this dilemma should make that choice. ये अधिकार उसका होगा कि उसने ये मार्केट को लेना है या ट्रेडिशन को रखना है। इसको बाहर से किसी ने एनफोर्स नहीं करना है। किसी भी ट्रेडिशन को तब तक ही कंजर्व किया जा सकता है जब तक वो कम्युनिटी उस ट्रेडिशन को मानती है। Now, for example, take some non-tribal community which had a tradition of going on चार धाम यात्रा every year. उस कम्युनिटी के लोग कभी अगर सिटी लाइफ में होंगे, से मुंबई में है, दिल्ली में है, will they go for चार धाम यात्रा every year following that tradition? Who will make that choice कि ये ट्रेडिशन को रखना है कि नहीं रखना है?
there was some traditional clothing of every community. अभी मतलब आप देखें तो साड़ी पहनने के कितने सारे तरीके हैं, उसकी भी काफी सारी हिस्ट्री है, काफी सारे वैरायटी डाइवर्सिटी है. अभी आज सिटी में will working women in a city continue to wear their traditional sari every day? Who will make that choice? That particular individual will make that choice. It should be an informed choice by that individual. तो परंपराओं को रखना है कि नहीं रखना है, कौन सी परंपरा को रखना है, नहीं मतलब कितना रखना है, ये सबका चॉइस वो गांव करेगा. और मैं आज भी देखता हूँ कि कुछ गांव बहुत अच्छी तरह से अपनी परंपराओं को संभाले हुए हैं. They know their forest wealth very well. जैसे हमारा जो फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल होता है, रामबाजी महोत्सव होता है, it is not organized by my organization. It is organized by the Gram Sabha of that village. And the objective of that festival is younger generation learning about forest food from the older generation. उसमें कंपटीशन चलता है थोड़ा सा कि कौन ज्यादा से ज्यादा टाइप का, ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज की सब्जी जंगल से लाता है. और जंगल की ज्यादा जानकारी किसको है, तो मेरी दादा दादी को है, मुझे नहीं है. तो आई टेक माई दादा अलॉन्ग विथ मी एंड आई लर्न फ्रॉम हिम कि जंगल में क्या क्या अच्छा खाने के लिए मिलता है. दिस इज कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन. But this is done through a small festival and event which is organized by the village assembly. So it will be their choice to keep this tradition. कल अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये पोटैटो कैप्सिकम यही खाना है, so that is their choice. So I am extremely concerned about these traditions which have immense environmental wisdom. प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने का जो सयानापन है वो इतना ज्यादा है परंपराओं में कि उनकी रक्षा होनी चाहिए. और जहां तक मेरी शक्ति है मैं करूंगा, लेकिन हर व्यक्ति का, हर गांव का ये चॉइस होगा कि परंपरा को कितना रखेंगे, मॉडर्निटी को कितना आने देंगे. अभी ये चैट बॉक्स में भी बहुत सारे प्रश्न yes sir, you can take whichever you want. एक मला खूप इंटरेस्टिंग वाटतोय, कारण आपल्या ह्याच्यात तरुण मंडळी भरपूर आहेत, स्टुडंट्सच आहेत मॅक्झिमम. तर एका मुलाने प्रश्न विचारला, सचिन वरपे, आमच्यासारख्या तरुणांनी आदिवासी भागात कसे काम करायला हवे. सो मे बी वी कॅन टेक दॅट क्वेश्चन फर्स्ट, अँड इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी अदर क्वेश्चन प्लीज I request you to go ahead with that. Certainly. Sachin, thank you for a very good question. की तरुणांनी आदिवासी भागात कसं काम करायला हवं. तर मला असं वाटतं की आधी एकतर मैत्री करायला हवी, आणि आपण तरुणपणे खूप सहज मैत्री करू शकतो. त्यामुळे तुमच्यापासून जो कुठला आदिवासी भाग, गावं, कुठलाही ग्रामीण भाग जवळ असेल तिथे मैत्री कशी करता येते बघा. मैत्री झाल्यानंतर आपल्याला एकमेकांच्या अडचणी न सांगता कळायला लागतात. जेव्हा असं कळायला लागेल त्याच्यानंतर काम करायचं. सो आय हॅव फॉलोड दिस इन माय लाईफ. मी कितीतरी वर्ष आदिवासी गावातल्या माझ्या मित्रांना कुठल्याही प्रकारच्या सूचना न करता केवळ त्यांच्याबरोबर राहिलो, मैत्री केली, त्यांच्यासारखं जगलो, आणि त्याच्यानंतर माझ्या लक्षात यायला लागलं की कसा विचार केला पाहिजे. एक सोपं सोल्युशन म्हणून मी तुम्हाला असंही सांगतो की सचिन आणि बाकी ज्या कोणाला आजचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना आमच्या संस्थेमध्ये इंटर्नशिप तुम्ही करू शकता. 1 महिना किंवा 2 महिने आमच्याकडे येऊन अनुभव घेऊ शकता कामाचा, की ज्याच्यामुळे तुमचं सगळं बदलून जाईल याची गॅरंटी माझ्याकडे आहे. इट विल बी अ लाईफ चेंजिंग एक्सपिरियन्स. You can apply to our organization for an internship in summer or in winter. Work with us, take a deep dive in tribal lifestyle. आणि मग आपण काम कसं करता येईल याच्यावर बोलूया. एक काम जे तुम्ही तुमच्याही भागात करायला हवं ते म्हणजे लोकशाही मजबूत करण्याचं. की सर्वच ठिकाणी जर मतदार आपल्याला प्रश्न विचारतात अशी सवय सरकारला आणि नोकरशाहीला लागली तर आपली लोकशाही पुष्कळच मजबूत होईल. अजून एक प्रश्न मुझे और किसी ने अभी पूछा था कि विजय केलकर कमेटी के बारे में पूछा था. So that Kelkar committee had really good recommendations for tribal areas and policies, but Kelkar committee also had recommendations about regional backlog of Vidarbha and Marathwada.
तर प्रादेशिक अनुशेष असा विजय केळकर समितीचा विषय होता, ज्याच्यात त्यांनी आदिवासी भागातला विकासाचा अनुशेष याच्यावर पण एक खूप मोठा चॅप्टर आणि खूप चांगले रेकमेंडेशन्स दिले. पण हा अहवाल विधानसभेत मांडलाच जात नाहीये. म्हणजे मध्ये एक सरकार येऊन गेलं, आता दुसरं आहे, तरी पण हा जोपर्यंत विधानसभेत तो मांडला नाही जात तोपर्यंत त्याच्यावर काहीच होणार नाही. याची मागणी आम्ही आमच्याकडून केली, पण त्याच्यावर विधानसभेत येत नाही तोपर्यंत काय हालचाल होऊ शकत नाही. ट्रायबल्स हॅव्हिंग प्रॉब्लेम्स. ओके, एक अभय म्हणून एकाने मला प्रश्न विचारलाय मुरबाड शहापूर तालुक्यातून. अभय, तुम्ही आमच्याशी संपर्कात राहा. तुम्ही असं म्हणताय की तुमच्या गावात 5% अनुदान मिळालं नाही. तर अभय, याच्यातली खरी गोष्ट अशी आहे की गेली 5 वर्ष दरवर्षी आदिवासी उपयोजनेचा 5% निधी हा पेसा क्षेत्रातल्या सर्व ग्रामपंचायतींना ट्रान्सफर झालेला आहे. तुम्ही ते ऑनलाईन पण तपासू शकाल. ई ग्राम स्वराज नावाच्या ऍपमध्ये तुमच्या ग्रामपंचायती आलेला निधी तुम्ही बघू शकाल. तर तुम्ही म्हणताय त्या गावात शासनाकडून निधी आलाय, तो निधी ग्रामपंचायतीतून कुठे गेला हे तुम्हाला शोधावं लागेल, तुमच्या गावात शोधावं लागेल. त्याच्यासाठी काही मदत लागली तर आम्ही जरूर मदत करू. पण तुम्ही म्हटलंय तसं राज्यपालांकडून म्हणजे राज्यस्तरावरून ते पैसे आलेले आहेत आणि गेली 4 वर्ष सतत येत आहेत. फक्त ग्रामपंचायतीमध्ये टाकी कुठे गळते ते तुम्हाला शोधायला लागेल आणि लढावंही लागेल. So there is this question by our colleague in the English department. Could you please tell us about efforts are being made to preserve the languages of the tribals and their deities and rituals related to them? एक मिनिट. सुनील बामणे असं नाव आहे. Somebody asked for my contact information. I have given in chat box my email ID. Sorry, Dr. Minal, I missed the question because of this. Yes, sir. Sunil Bamne is a colleague in Department of English from KP College. He has asked the question about efforts being made to preserve the languages, deities, and rituals of tribals. Yes. Okay. Yeah. I have a curious question before answering this. How many of you use Marathi in Gmail? Is your Gmail in Marathi? I mean, not typing in Marathi. पण जीमेल मधले जे शब्द आहेत म्हणजे फॉरवर्ड करायच्या जागी अग्रेषित करा, सेव्हच्या जागी जतन करा, असे शब्द असलेलं जीमेल असं तुमच्यापैकी किती लोक वापरतात? तुम्ही नंतर उत्तर देऊ शकता. किंवा मोबाईल मध्ये तुमच्या अँड्रॉइड मध्ये ऑप्शन असतो तुम्हाला मराठी वापरायचा. तुम्ही वापरता का मराठी का इंग्लिश मध्येच कंटिन्यू करता? The survival of languages depends on the users of that language, where they use that language for. तुम्ही भाषा कुठे आणि किती वापरता आणि त्या भाषेची अनिवार्यता अपरिहार्यता किती राहते याच्यावरती भाषा जगणार की संपणार ते ठरतं. आता आपण जी मराठी वापरतो म्हणजे मी काही महिन्यांपूर्वी असं झालं की प्रोफेसर माधव गाडगीळ आहेत त्यांच्याशी काही चर्चा माझी चालू होती आणि त्या चर्चेमध्ये माझ्या असं लक्षात आलं की मी खूप इंग्लिश शब्द वापरतो मराठीत आणि गाडगीळ सर वापरत नव्हते. म्हणजे मी बोलताना कसं बोलत होतो की अमुक अमुक आपण युट्यूब वरून डाउनलोड करूया आणि मग अमुक अमुक ठिकाणी ते सेव्ह करूया वगैरे वगैरे. आणि गाडगीळ सर मात्र बोलताना असं म्हणाले की आपण युट्यूब वरून उतरवूया. आता डाउनलोड करूया ऐवजी उतरवूया हा साधा सोपा शब्द आहे, पण आपण मराठी नाही वापरत आहोत. आणि मराठी भाषा दिन असा आपण आता सेलिब्रेट करायला लागलोय, तो पूर्वी नव्हता, कारण तोपर्यंत मराठीला धोकाच निर्माण नव्हता झाला. म्हणजे मराठीला मराठी संपेल बिंपेल अशी काही भीती आपल्याला वाटत नव्हती. I am giving this example because this is a human phenomena all across the world that language is not being used in modern technologies, in modern education, tend to decay. आदिवासी भाषा ज्या आहेत वेगवेगळ्या त्या भाषांचा जितका वापर होत राहील तितक्या त्या भाषा जगतील.
त्यांच्यासाठी बाहेरून वरून काही प्रयत्न करणं हे मला फार काही उपयोगाचं वाटत नाही. कारण मराठी भाषा वाचवा असा समजा आपण कार्यक्रम सुरू केला तर त्याने काय उपयोग होणार आहे का मला माहित नाही. पण मराठी भाषा बोलणारे लोक जर आधुनिक तंत्रज्ञानात मराठी वापरत राहिले तर मराठी राहणार आहे. तसं त्या भाषेचे लोक जर ती भाषा वापरत राहिले तर ती भाषा जगेल. Tribal languages, in some tribal languages there are very old words and terms regarding many things in the forest. तर त्या सगळ्यासाठी त्या भाषा अभ्यासल्या पाहिजेत, त्या भाषा जगल्या पाहिजेत. पण त्या जगवणं हे ती भाषा वापरणाऱ्याच लोकांच्या हातात आहे. ते जितके आग्रहपूर्वक ती भाषा वापरतील, त्या भाषेमध्ये साहित्य निर्मिती करतील, त्या भाषेमध्ये ज्ञान निर्मिती करतील. म्हणजे आता महाराष्ट्र राज्याच्या आदिवासी विभागाने आदिवासी भाषांमध्ये पहिली दुसरीची पाठ्यपुस्तकं पण तयार करून घेतली. पण ती त्या ठिकाणच्या लोकांनी जर वापरली आणि त्याचप्रमाणे ते इतर गोष्टी त्यात करत राहिले तर या भाषा टिकतील. नाहीतर मग जशी आज आपल्या भाषांची खिचडी झालेली आहे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश याच्यातलं आपण कुठेही काही वापरत असतो, तर तसं या पण सगळ्या भाषांचं होणार आहे. दुसरं तुम्ही म्हटलं होतं की deities and rituals related to them. So these deities and rituals are related to lifestyle. जब तक लोग जंगल में या जंगल के पास में निकट में रहेंगे तब तक जंगल की देवताओं की भक्ति चलेगी. मतलब बात यह है कि आप सोच सकते हैं कि पुराने जमाने में जब जंगल को साफ करके नई खेती बनाई गई थी उस समय जंगल के श्वापदों से अपने पालतू जानवरों का रक्षण करना ये बहुत जरूरी था. If you see in all entire western tribal belt, you will find that there is a god called Vagdev. Now this Vagdev is not tiger. It is a god that protects from tiger and other predators. It protects the human in the forest. It protects the animals in the village. So that god is worshipped because there is forest around. Now you can think that if this forest is gone or that particular community migrates to a city, will that god be relevant? Will that god be worshipped with the same faith as before? So the worship and rituals are related to a lifestyle. आपण बघू शकतो की वडाचं झाड सांभाळून ठेवण्याची एक संस्कृती होती. कारण वडाच्या खाली पाणी राहतं, वडाच्या खालच्या मातीमध्ये मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी पण खूप चांगली असते. पण त्याला एका परंपरेने बांधून ठेवलं होतं की वडाच्या झाडाला फेऱ्या मारायच्या, मग त्याच्यामुळे काहीतरी छान मिळतं वगैरे असं. What you see is that tradition not distorted in current times? आता शहरात मी असं बघतो की वडाच्या फांद्या तोडून आणतात घरी आणि त्याला दोऱ्या गुंडाळतात. That has happened because we lost a lifestyle which had coexistence between that banyan tree, that ecology around banyan tree and the human existence. So if the lifestyle continues, the gods, deities, rituals will continue with the same effect, with the same faith. आणि अशा खूप प्रकारच्या पूजांमध्ये, परंपरा, उत्सवांमध्ये मी अनेकदा सहभागी झालोय. त्याच्यामधली जी उत्कट श्रद्धा असते त्याचा अनुभव घेतलाय, त्याचा उपयोग होतो असं पण अनुभवलंय. म्हणजे मला एक आता थोडा वेळ कमी आहे पण तरी मला असं वाटतं, एक डोयापाडा नावाचं गाव आहे विक्रमगड तालुक्यामध्ये. त्यांनी सामूहिक वन अधिकार मिळवला. एक वन अधिकार कायदा है और हमारे संगठन ने उनको मदद की ये कानूनी अधिकार प्राप्त करने में. तो कानून से उनको जंगल पर अधिकार मिला. जंगल पर अधिकार मिलने के बाद उन्होंने जंगल के कुछ क्षेत्र से कटाई बंद कर दी, चराई भी बंद कर दी. मतलब वहां पे गाय बकरियों को नहीं चराते, वहां पे कुल्हाड़ी लेके कोई नहीं जाता है. ऐसा जंगल का एक आरक्षित क्षेत्र है. बाकी जंगल खुला है, थोड़ा 1/3 उसमें से प्रोटेक्टेड है. अब ये जो प्रोटेक्शन शुरू किया तो ऑल नेबरिंग विलेजेस अपोज्ड दिस. पड़ोसी गांव ने उनके खिलाफ काफी लड़ाई झगड़े किए. तो ये गांव विरुद्ध बाकी के 7-8 गांव, ऐसा ये झगड़ा कुछ समय तक चला, लगभग 1 साल तक चला. वो खत्म होने के बाद डोयापाड़ा गांव के लोगों ने एक दिन मुझे खास आग्रह करके बुलाया और मुझे बोले कि दादा आज तुझं नवस फेडायचं आहे. तो आई वॉज वंडरिंग कि माझा नवस, मतलब गांव के लोगों ने मुझे बताया कि एक तेरी मन्नत हमने रखी थी उसको आज पूरा करना है. तो क्या थी,
तो जंगल के भगवान को उन्होंने मन्नत मांगी थी कि ये पड़ोसी गांव का जो विरोध है उसको अगर खत्म करे, झगड़े बंद हो जाए, तो हम लोग एक बकरा अर्पण करेंगे. We will sacrifice a goat if the god of the forest helps us to solve these disputes with neighbors. और ये जब पूरा हो गया तो उन्होंने सचमुच में ऐसा सब किया और जंगल के उस पूजा में अर्थात मैं भी उनके साथ था. वो इसलिए कह रहे थे की तुझा नवस फेडायला अशासाठी होतं की हा अधिकार घ्यायचा, जबाबदारी घ्यायची, हे सगळं करण्यामध्ये मी त्यांच्या मदतीला होतो. त्यामुळे त्यांनी असं ठरलं की आपल्या गाववाल्यांप्रमाणेच मिलिंद दादा पण आपल्या बरोबर आला पाहिजे आणि नवस सगळ्यांनी मिळून फेडायचा. दिस इज द फेथ इन फॉरेस्ट गॉड्स. इफ फॉरेस्ट इज अराउंड, द गॉड्स आर अराउंड. दॅट कल्चर, दॅट सिव्हिलायझेशन, त्याच्यातले जे संस्कार आहेत ते त्या निसर्गाबरोबरच टिकणार आहेत आणि तो कमी झाला तर हे कमी होणार आहेत. एक्सलंट. तुमचा अनुभव इतका आहे की खरंच ऐकत राहावंसं वाटतंय, पण आपल्याला वेळेची पण मर्यादा आहे. एखादा प्रश्न अजून घ्यायचा असेल तर घेऊया, अदरवाईज आपण पुढच्या भागाकडे जाऊया. एक Karishma Samuel has asked a question which is quite a big. It is rather a comment or her observation. So maybe asking what are your views on this, Karishma? This will take. Karishma, would you like to ask the question? In that case, I'll unmute you. Now you can unmute yourself if you want to ask the question, because we can't find question from the long comment that you have written. You Good can morning, unmute ma'am. yourself if you wish. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Sir, as I'm from Chhattisgarh, sir, I have seen lots of news in the tribal areas like Bastar. There is a lots of Naxalwadi, and the question I write here is the Forest Right Act 2006 is for the rights of forest dwellers, but due to the lack of absence of survey, settlement, land record, and lack of knowledge, it is quite impossible for many tribal communities to provide evidence. This caused many of the forest dwellers to be evicted from the forest. Even after many years of independence, we have seen Indian Adivasis face large number of challenges. That is ethnic discrimination, discrimination in employment and education, poverty and malnutrition. And one other thing which I want to know is that as the Supreme Court of India has permitted extensive industrialization and mining in forest, which are the traditional homeland of Adivasis. So this decision also violates the constitutional safeguards of given to Adivasis, and the Adivasis like Northeast, Jharkhand, Chhattisgarh are sites of intense violent conflict. Like we can see that many of the people are killing, illegal detention, abduction, torture. So, sir, I want your views in this. Views exactly on what? Because you said so many things. Yes, sir, I want that even after government had tried so many things in that. But we have seen that Adivasis are claiming that we are not getting enough facility and we are not getting enough satisfaction with the government is doing for us. Like there's lots of poverty in the areas and lots of malnutrition. People are not enough educated. Charisma, I get what your point. अभी ऐसा है कि natural resources are limited, and so to get control over natural resources, competition, contest, conflict will always happen. It has always happened in human evolution, और इसके आगे भी होगा. अभी ये इसको मार्क्स के शब्दों में कहना है तो दिस इज स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले भी होता था, अब भी होता है, इसके बाद में भी होगा. इसमें what the polity or the state system tries to do is balancing between opposing forces. Industry taking resources from a particular area is one force, and local people, tribals, non-tribals, forest dwellers, living, taking their basic livelihood through these resources, these are opposing forces.
So what the state system seeks to do is balance the two. Now, which side the balance will tilt to? It will tilt to the side which has more power. So what remains in people's hands? It is to assert their legal rights. It is to file maximum claims of rights, and then struggle to get recognition of these rights. Fortunately, from the enactment of Forest Rights Act, there is a legal provision to get rights recognized. इसके पहले ये भी मौका नहीं था, मतलब केवल रास्ते पे उतर के लड़ना, यही बात हाथ में थी. अभी ऐसा है कि रास्ते पर उतरना बहुत जरूरी नहीं, कभी कभी उतरना पड़ता है, हम भी उतरते हैं, लेकिन दिस कैन बी लास्ट रिसोर्ट. इसके पहले कानूनी ढंग से काफी लड़ा जा सकता है, बट इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन विच साइड इज मोर असर्टिव. तो अगर गांव के सामान्य आदिवासी की आवाज दूर तक नहीं पहुंचती है, तो हम जैसे उनके सभी दोस्तों ने ये इस आवाज को एम्पलीफाई करना चाहिए. So that we can definitely do. This struggle will go on. इसके बाद में भी ये struggle चलता रहेगा. अपने मतलब whether our democracy will survive depends on whether democracy is able to keep this balance between the two. And you can always contact me. Email तो मैंने share किया है, but you can always write to me, Karishma, if you have more questions, because we don't have enough time right now. Okay, sir. Thank you. Hello. Yes. Hello. Am I audible? Yes, Jyoti. Yes. नमस्कार सर. मध्यंतरी तुम्ही आता जो अनुभव सांगितला ना, नवस आदिवासींनी केला होता आणि तुमचे जे प्रेमाचे बंध निर्माण झाले होते काम करताना, तो अनुभव मला वाटतं तुम्ही आकाशवाणीवर तुमचा एकदा कार्यक्रम झाला तेव्हाही सांगितला होता. मला तो आठवला आणि पुन्हा ऐकायला खूप छान वाटलं. तासभर तुम्ही बोलताय सर, असं वाटतं ऐकत राहावं, पण आहे टाइम कन्स्ट्रेंट. थँक्यू सो मच. Thank you. So that was Dr. Jyoti Munde, departmental colleague from Department of English. आणि आपला सुरुवातीला एका पॉइंटला अटेंडन्स 220 होता आणि आता तो 190 आहे. दॅट मीन्स नॉट मेनी स्टुडंट्स हॅव लेफ्ट आणि दॅट इट सेल्फ शोज की हा कार्यक्रम किती एंगेजिंग झाला आणि सगळ्यांनी किती लक्षपूर्वक हे ऐकलंय. इवन इफ वी चेक द चॅट बॉक्स, त्याच्यात बऱ्याच जणांनी आपापल्या कमेंट्स लिहिलेल्या आहेत, त्यांचे प्रश्न आहेत, काही अजूनही अनुत्तरित राहिलेत, पण आय एम शुअर की तुम्ही जो ईमेल आय डी तुमचा शेअर केलाय त्याच्याप्रमाणे ते विल गेट इन टच विथ यू. आणि काही जणांनी ज्यांनी इच्छा व्यक्त केली, लोबो सरांनी फॉर एक्झाम्पल विचारलं होतं, इज फ्रॉम झुंझुनवाला, पॉलिटिकल सायन्स प्रोफेसर फ्रॉम झुंझुनवाला कॉलेज. सो even his students and other students who are interested, we have faculty from our NMITD, which is Management Institute of Deccan Education Society. We have Sangeeta Roy from Ratnam College. ह्या सगळ्यांच्या स्टुडंट्सनी जरूर इंटरेस्ट घेतला तर आपण त्यांना वयमशी जोडू शकू आणि आय थिंक दॅट विल बी रिअल सक्सेस ऑफ दिस सेशन. सो आपण थोडस कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे जाऊया सर. ऐकत राहायला जरूर आवडेल, पण आपल्याला वेळेचीही मर्यादा फॉलो करायला लागेल. मिनल मॅडम बोलू थोडस. हॅलो. हो सर. येस सर. नमस्कार सत्यजी. यू वांट टू स्टार्ट युअर व्हिडिओ? यू कॅन स्टार्ट युअर व्हिडिओ. हा ना, माझा व्हिडिओचा प्रॉब्लेम. प्रोफेसर विठ्ठल सोनटक्के सर इज आवर व्हाइस प्रिन्सिपल अँड ही इज इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स. येस सर, प्लीज गो अहेड. ओके, थँक्यू. नमस्कार सत्यजी. फार इन्साइट्स तुम्ही आम्हाला दिल्या त्याच्याबद्दल. ऍक्च्युली मी प्रश्न विचारला होता कारण गेल्या वर्षापर्यंत SYBA ला आर्ट्समध्ये हा विषय होता आधी, म्हणजे आणि केळकर समितीचा अहवाल जो 1914 मध्ये झाला होता त्याच्यामध्ये शिफारशी सगळ्या आल्या आणि त्याच्यामध्ये ट्रायबल लोकांसाठी काय काय करायला पाहिजे हे सगळं सांगितलं होतं, पण ते सगळं कागदावर राहिलं. प्रत्यक्षामध्ये आदिवासी मंत्री श्रीमंत झाले, आदिवासी गरीबच राहिले. हा एक फार मोठा विसंवाद आहे आणि अनेक वेळेला प्रचंड निधी म्हणजे आदिवासी कल्याणासाठी सरकारने प्रत्येक बजेटमध्ये तरतूद केला, पण तो काही खर्च झाला नाही. पण आणि ह्या ज्या आता आम्ही मध्ये तलासरीला पण भेट दिली होती आपल्या वनवासी प्रकल्पाला, तेव्हा पण आम्हाला काय इन्साइट समजल्या. तर त्याच्यामुळे तुम्ही जे काय सांगितलं ह्या गोष्टी आमच्या विद्यार्थ्यांना कळल्या हे फार महत्त्वाचं आहे. कारण आपले कार्यकर्ते जाऊन तिकडे काम करतात आणि ह्या ज्या वेगळ्या त्यांच्या ज्या आदिवासींच्या गोष्टी आहेत त्या सरकार फक्त वरवर विचार करतं, त्याच्यावर जो योग्य प्रयत्न व्हायला पाहिजे तो होत नाहीये. त्यासाठी तुम्ही जे कार्य करता त्याला प्रचंड अनेक सलाम आमचे. आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना असं वेळोवेळी मार्गदर्शन करा
म्हणजे जेणेकरून विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने आमचे तिथे जॉईन होऊ शकतील. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. मला थँक्यू सुद्धा सोनटक्के सर. मला सुद्धा ना जरा पण लॉग आउट व्हावं असं वाटलं नाही. मी पहिल्यापासून ऐकतोय. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. सर एक अनाउन्समेंट होती की चॅट बॉक्समध्ये मी ऑलरेडी फीडबॅक फॉर्मची लिंक दिलेली आहे. So students, you are requested to please fill that link and give us the feedback about the session. And your e-certificate also will be sent in your inbox once you fill the feedback form. सर अजून एक छोटासा अगदी 1 मिनिट लागेल असा एक कार्यक्रम होता. त्याच्यामध्ये जनरली आपण एखादी स्पर्धा घेतो किंवा एखादं बक्षीस समारंभ असतो तो एखाद्या मान्यवरांच्या हस्ते, मुख्य अतिथींच्या हस्ते करत असतो. आता सगळंच व्हर्च्युअल होतंय, सगळंच ऑनलाईन होतंय. त्याच्यामुळे फक्त तुम्ही इथे आमच्या सोबत आहात आणि मी फक्त नावं अनाउन्स करते. And I will request the students to on their video, switch on their video if possible. This is the result of the competition which Medha madam had mentioned. We had conducted this PowerPoint presentation competition. In TYBA, we have a special paper for political science students. ज्याच्यामध्ये they have to watch various movies. The paper's title is Understanding Politics Through Films. ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे पॉलिटिकल इश्यूज आहेत, थीम्स आहेत आणि त्याच्याशी अनुषंगिक जे चित्रपट आहेत ते त्यांनी बघणं अपेक्षित असतं. अँड बेस्ड ऑन दॅट त्यांना प्रश्न येतात पेपरमध्ये. सो त्याच्यावरच एक पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन कॉम्पिटिशन घेतलेली होती. त्याचा विषय होता इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स प्रोजेक्टेड थ्रू फिल्म्स. तर या कॉम्पिटिशन साठी डॉक्टर ज्योती मुंडे ज्या आता आपल्याशी बोलल्या इंग्लिश डिपार्टमेंट आणि प्रोफेसर शुभश्री परब डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स यांनी जज म्हणून काम बघितलं आणि त्यांनी जे नंबर काढलेले आहेत ज्यांना त्यांनी सिलेक्ट केलेलं आहे त्यांची मी नावं अनाउन्स करते. दीज आर आर TY स्टुडंट्स. इफ यू आर अटेंडिंग दिस अँड इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू स्विच ऑन युअर व्हिडिओ प्लीज डू दॅट. आणि आपण एक व्हर्च्युअली तुम्हाला बक्षीस दिलं गेलं थत्ते सरांच्या हस्ते असं एक सर घोषित करू शकतील. The consolation prize goes to Tanvi Mestri. Tanvi, तिने सरांची ओळख करून दिली. Tanvi, you get consolation prize. Third prize goes to Rutuja Sakpal. She is FY BSc student, but she presented on this. I don't know Rutuja whether she is there today. Ashwini Bagane, second prize. Ashwini, can you switch on your video, please? You get second prize in this competition. And the first prize goes to Surabhi Padmere. Surabhi, if you are there, please switch on your video. So, hearty congratulations to all of you. It was really excellent. We all witnessed, we were there in the competition and judges have really done their job well because even we thought that you would get these prizes. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू ऑल. आणि थत्ते सरांच्या उपस्थितीमध्ये तुमची नावं आता आपण इथे अनाउन्स केली. दुसरी सर कॉम्पिटिशन झाली होती दॅट वॉज फॉर SY and FY स्टुडंट्स अँड दॅट वॉज अगेन PPT कॉम्पिटिशन. द टॉपिक वॉज लॉज रिगार्डिंग इंडियन सिटीजन्स. So in second year they have paper on introduction to law where they learn various laws for Indian citizens. So in that the third prize goes to Ms. Zuili Kadam. She is our FY BA student. Zuili, I think you are there as a participant. If you are there, Surbi has switched on her video. First prize winner, Zuili FY BA. Second prize from FY BA, Nishi Shah. Nishi Shah. If you are there, please switch on your video. And first prize is for FY BSc student Ankit Yadav. I repeat, Zuili Kadam third prize, Nishi Shah second prize, and Ankit Yadav FY BSc first prize. So these students are the prize winners. Hearty congratulations to all of you. तुमची सर्टिफिकेट्स तुम्हाला लवकरच मिळतील आणि ती व्हर्च्युअली न मिळता तुम्हाला ऍक्च्युअली कॉलेजमध्ये येऊन घ्यायला लागतील किंवा जेव्हा कॉलेज सुरू होईल तेव्हा तुम्हाला ते मिळतील. सो thank you so much. I must also mention Professor Wagh sir, who is one of our senior political science teacher from rural part of महाराष्ट्र. आणि सरांचा उत्साह खूप असतो. ते स्वतः अनेक कार्यक्रम आयोजित करत असतात. सर आणि त्यांचे काही विद्यार्थी सुद्धा कार्यक्रमाला आज आलेले आहेत.
So with that, may I request Ashwini to please propose vote of thanks. Yes, ma'am. Good morning, everyone. On behalf of Deccan Education Society, Kirti M. Dungrasi College, and Department of Political Science, I wish to express my gratitude to today's speaker, activist Sri Milind Thatte sir, for sharing his thoughts and experience with respect to issues and challenges of tribal movement in Maharashtra. Sir, your lecture was very lucid and threw light on different dimensions of tribal life. I am sure that it has widened understanding about issues of each of the participants. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation and delivering excellent speech today for us. I wish to express a sincere thanks to all political science teachers of various colleges under the University of Mumbai for attending as well as encouraging their students to attend this lecture. I am very thankful to our principal, Dr. D.V. Pawar sir, for all his support to departmental activities. I also wish to thank all vice principals, IQSC chairman, Professor Matthew sir, for support and motivation. And last and most important, a big thank you to all students from different colleges as well as other participants interested in the subject for attending today's lecture. Thank you. And with this, I request Meenal Madam to take over. Thank you, Ashwini. So I declare that the session is over. Uh, I read in the chat box that feedback link is not open, so we will open it in another 10 minutes. So you can fill the link or fill the form after 10 minutes. Just give us 10 minutes. Maybe there is some technical issue with the link. Thank you everyone for attending this session, and special thanks to Thatte sir for accepting this invitation and delivering such a wonderful speech. I declare that the session is over. Thank you so much.